Sit with your spine straight, close your eyes. Inhale and exhale slowly and gently. लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ. आपका ध्यान आपकी सांसों की ओर. बी अवेयर ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ. अपने अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस की तरफ अपना ध्यान करेंगे. आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा. Just feel the breath moving inside your nose as you inhale and exhale. सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए जो हवा आपके नाक के अंदर घूम रही है उसका ध्यान करेंगे. हो गया। Now bring your awareness to your heart center. अपने हार्ट सेंटर, अपने अनाहत चक्र के ऊपर अपना ध्यान रख के जाएं. आपके चेस्ट के एकदम सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर चेस्ट के सेंटर में अपना ध्यान लेके जाएं. और विजुलाइज करें कि आपके बॉडी के अंदर एक खाली जगह है. इस खाली स्थान को हम हृदयाकाश बोलते हैं. तो अपना ध्यान इस हार्ट सेंटर के अंदर जो खाली स्थान है, द एम्प्टी स्पेस इनसाइड योर हार्ट सेंटर. जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट हार्ट सेंटर एंड विजुलाइज अ ब्राइट लाइट. एक दिव्य दीपक, एक दिव्य ज्योति का आप ध्यान करें अपने हृदयाकाश के अंदर. जैसे जैसे आप इस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं, ये ज्योति जो है और प्रकाशमय होती जा रही है. As you be aware of this bright light inside the heart center, this light is becoming brighter and brighter. Simultaneously be aware of your breath. If you have any guru mantra, you can chant that guru mantra. आपका कोई गुरु मंत्र है, आप उस गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं. नहीं तो मेरे साथ साथ आप, जो मैं जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ जाप कीजिए. ओम राम रामाय नमः. ओम रामदूताय नमः. ओम राम रामाय नमः. ओम रामदूताय नमः. ओम राम रामाय नमः. ओम रामदूताय नमः. थोड़ी देर के लिए इस मन में जो शांति आपके आ रही है उसका ध्यान करेंगे, उस शांति को महसूस करेंगे.
Just be aware of this peace, this calmness, this stillness that you're feeling right now. Take a deep breath in, inhale deeply, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे. Relax, smile, slowly and gently open your eyes. Atma Namaste everyone. I salute the divinity within each one of you. आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार. So, last time when we had session, हम लोगों ने पेज नंबर 18 हमें आई थिंक किया था. अभी हमें स्क्रिप्चरल बेसिस एंड व्हाट टेक्स्ट्स एक्चुअली से आई थिंक ये करना है. और द पैराडॉक्स एट द हार्ट ऑफ द अंश अवतार आई थिंक पेज नंबर 20 से करना है. Yeah, page number 20, the paradox at the heart of whole of it. तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनके अलग अलग नाम पड़े, इस बारे में हमने पूछा, बात की. फिर हमने पढ़ा कि हनुमान जी जो हैं वो शिव के अंश अवतार कैसे हैं. और आज हम पढ़ेंगे पैराडॉक्स एट द हार्ट ऑफ द अंश अवतार. शिवा बिकम्स अ डिवोटी. गिव मी अ मिनट. So here is where the Anshavatar teaching reaches its most breathtaking and philosophically stunning conclusion. Shiva, who is himself considered in the Shaiv tradition to be the supreme absolute, the source of which all the beings arise and into which all the things return. तो शिव से ही कहते हैं कि सब कुछ उत्पन्न होता है और शिव में ही सब कुछ लीन हो जाता है. Chose to take birth, uh, Share tradition to be the absolute supreme absolute, the source from which all the things arise and into which all the things return. Chose to take birth as the devotee of Vishnu. Think about what this means. The greatest yogi in the cosmos, the one who holds the universe in his matted locks, whose third eye sees through the skin of Maya to the naked truth beneath. This being chose to come to earth not as a king, not as a warrior, not as a teacher, but as a servant. Specifically, as Ram's servant, as the one who carries Ram's sandals in his heart, who asks for nothing except to be allowed to remain near Ram forever, who considers the dust of Ram's feet more precious than the lordship of all the three worlds. Why? Shiv Agams give a profound answer because Shiv had realized something that can only be realized from inside. That devotion is not inferior to knowledge. That bhakti is not a lower path for those who cannot manage jnana. That the state of being perfect devotee, emptied of all the self will, filled entirely with love and for the divine. It is itself the highest state. वो कहते हैं कि शिव ने क्यों चूज किया कि वो हनुमान के स्वरूप में एक फिजिकल वर्ल्ड में आएंगे, राम के भक्त बन के, राम के चरणों में रह के, जबकि जो शिव है वो खुद एक सुप्रीम पावर है. तो उन्होंने ये बताने के लिए किया कि जो भक्ति होती है, जो डिवोशन होती है, जो लोग ज्ञान योग नहीं कर सकते हैं, वो किसी से कम नहीं है.
तो वो शिव क्या है, खुद क्या है, ज्ञान है। खुद शिव के पास खूब सारा ज्ञान है, सारी सृष्टि को उन्होंने तंत्र का ज्ञान दिया। माँ पार्वती को उन्होंने जितने आज की तंत्र की विद्याएं हैं सब शिव ने पार्वती को दी, कुछ नारद मुनि को दी, कुछ सप्त ऋषियों को दी, कुछ सनकादि ऋषियों को दी। तो वो जो है जो भगवान शिव है वो खुद इतने ज्यादा ज्ञान के ज्ञाता है, वो उनको खुद सब कुछ ज्ञान है। लेकिन वो भक्ति को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने हनुमान के स्वरूप में जो था वो जन्म लिया। That the state of being a perfect devotee, emptied of all self will, filled entirely with love for the divine, is itself the highest state. Shiv, the supreme Jnani, knower, chose to demonstrate through the life of Hanuman that bhakti and jnana are not two paths but two faces of the same liberation. So जरूरी नहीं है कि हमें ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, तो दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली भी हम लोग ज्ञान और भक्ति दोनों के साथ जब हम चलते हैं तो हम लोगों के लिए वो अच्छा रहता है। अब जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा का अगर आपको मतलब नहीं भी पता है ना, तो जो उसमें उनके वर्ड्स में जो पावर है ना, वो आपकी बात हनुमान जी तक, हनुमान जी के थ्रू वो आपकी बात राम तक ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ज्ञान के साथ पढ़ेंगे, अगर आप उसको अवेयरनेस के साथ, अगर आप उसको उसके मीनिंग जान के, उसका मतलब जान के उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो और भी अच्छा है। Hanuman knows everything. He is Vidyavan, the repository of all the knowledge, taught directly by Surya. अब भगवान जो हनुमान जी हैं उनको उन्होंने किससे अपनी विद्या ली थी, अभी आगे स्टोरी आएगी। उन्होंने अपनी सारी विद्या ली थी सूर्य भगवान से। कैसे उन्होंने सूर्य भगवान से रिक्वेस्ट की, कैसे उनके जो थे उन्होंने 9 व्याकरणों का ज्ञान उनसे लिया, कैसे उन्होंने विद्या ली। और सूर्य भगवान से विद्या लेना इज नॉट इजी। डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी जो है वो सूर्य देवता ने हनुमान जी को सिखाया था। कैसे सिखाया था, क्या स्टोरी थी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंड हनुमान लव्स कंप्लीटली, ही इज द भक्त शिरोमणि। भक्त शिरोमणि इज ही इज द वन हु इज द एपिटोम ऑफ भक्ति। सो भक्त जो सबसे ऊपर के भक्त है, तो वो भक्त शिरोमणि वो हनुमान जी हैं, द क्राउन ज्वेल ऑफ डिवोटीज। In him, the false division between the path of knowledge and path of love is dissolved absolutely. He is living proof that the greatest knower is the greatest lover, and that the greatest lover knows everything worth knowing. So वो greatest lover भी हैं, वो greatest devotee भी हैं, और वो greatest knower भी हैं। तो उनको ज्ञान भी है बहुत उच्च कोटि का, और उनको भक्ति भी जो है वो भक्त शिरोमणि भी हैं। सो इसलिए जो है उन्होंने बहुत एक भक्ति और ज्ञान का बैलेंस क्रिएट करके रखा है। जब सबसे पहले हनुमान जी ना मिलते हैं राम और लक्ष्मण को, जब राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते उनको सुग्रीव को मिलना है। तो जब वो सुग्रीव को ढूंढते हैं तो उनके जो ये होते हैं ना गुप्तचर होते हैं, तो वो आके बताते हैं कि इनको कि कोई आए हैं और वो दो दो लड़के हैं और वो बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे राजकुमार हैं, उन्होंने धनुष धारण किया हुआ है, तो वो हमारी टेरिटरी की तरफ आ रहे हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सुग्रीव जो थे उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जाओ जाके देख के आओ कौन आया है। तो हनुमान जी जब जाते हैं तो हनुमान जी एक ब्राह्मण के भेष में, उनसे फर्स्ट इनकाउंटर जो होता है वो ब्राह्मण के भेष में जाते हैं, और बहुत हाई लेवल की संस्कृत के जो है वो श्लोक बोलते हैं, उनको बात करते हैं। तो बहुत, तो राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं लक्ष्मण को, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा कोई वेदों का ज्ञाता है, कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है ये जो हमसे मिलने आया, क्योंकि जिस उच्च कोटि की संस्कृत का उच्चारण ये कर रहे हैं, जो इतनी अच्छी लैंग्वेज ये बोल रहे हैं, ये एक नॉर्मल इंसान नहीं बोल सकता, तो ही मस्ट बी अ वेरी वेरी लर्नेड पर्सन। सो दिस इज व्हाट राम सेड टू लक्ष्मण। सो ज्ञान गुण सागर, ही इज ज्ञान और गुण के सागर, ओशन ऑफ विजडम एंड वर्च्यू। द चालीसा नेम्स both in the same breath, in the same being, because in Hanuman, Shiva's अंश, they were never separate. हनुमान चालीसा में ये चौपाई है, वहां से इसको लिया गया। Then is Rudra, the howler, the stormer, the one who makes you weep. To understand Hanuman as Rudra avatar,
we must understand what Rudra means. This is one of Shiv's oldest and most primal names, appearing in Rig Vedas, Sri Rudram, one of the most ancient texts in human civilization. Rudra means many things simultaneously, and all of them illuminate something about Hanuman. रुद्र मीन्स द हाउलर, द रोरर, जो बहुत ज्यादा शोर करता है, right? The one whose voice shatters the air and fills the creation with sound. Listen to Hanuman's war cry as he leaps into the battle against Ravan's army. Listen to him roaring Ram's name. Okay, जोर से बोलते थे जय श्री राम, तो इतना जोर से बोलते थे कि पूरा जो आकाश था वहां तक उसकी जो साउंड की वाइब्रेशन थी वो पहुंचती थी. Listen to him roaring Ram's name in the courtroom of Ravan after his tail is set ablaze. तो उनकी पूंछ को आग लगा दी गई थी जब वो लंका में गए थे सीता को ढूंढने के लिए. उसके बाद जब उन्होंने सारी जो ये अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ दिया था और अपनी पूंछ से जो था वो लंका को आग लगा दिया था, तो उनको जब रावण के दरबार में पेश किया गया तो उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम. The sound that erupts from him in those moments is not a human shout, it is the howl of the Rudra himself, the primal roar of Shiva that at the end of cosmic cycle will dissolve all the creation back into the formless. Rudra means the one who drives away pain. From the root word rud, to weep, and the one who drives away the pain. From the root rudra, to weep, and the causative form to make others stop weeping. Shiva as Rudra is the one who witnesses all the suffering and acts to end it. Hanuman as Sankat Mochan, the liberator of all the crisis and suffering, is the same principle made personal and accessible. So जो रुद्र हैं, रुद्र का रूप होते हुए, क्योंकि वो सब कुछ जो है वो जो रोना है किसी का उसको खत्म करते हैं, ठीक है. तो वो जो उनकी फॉर्म है वो संकट मोचन इसीलिए है क्योंकि वो जितने भी लोगों के दुख है, किसी भी तरह की तकलीफ है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, तो फिजिकल इश्यूज हैं तो क्या है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा. इस तरह से हनुमान चालीसा की जो चपाइयां हैं उसी में सारे के सारे जो ये पावर्स हैं वो दी गई हैं. इसीलिए जब हम हनुमान चालीसा का चांटिंग करते हैं, हम उसका अच्छे से जब हम लोग पाठ करते हैं, हम उसको समझ के करते हैं, तो वो एस्पेक्ट जो है हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है. वो एक्टिवेट होने से वो जब हमारे ब्रेथ के थ्रू वो एनर्जी हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, आज्ञा चक्र तक हमारे ब्रेन में वो जब चीजें स्टिमुलेट होती हैं, वो वाइब्रेशंस होती हैं, तो हमारी लाइफ में पीनियल ग्लैंड के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब वो वाइब्रेशंस जाती हैं, दैट इज व्हेन मैनिफेस्टेशन हैपेंस. सो इस तरह से जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या जब हनुमान जी का नाम लेते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट डिफरेंट स्तोत्र हैं, अलग अलग जो शास्त्र में कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, हमारे पुराणों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो जब हम उनकी चांटिंग करते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर क्रिएट होती हैं. और वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर क्रिएट होने से क्या है कि हमारी लाइफ के हर तरह के इशू, हरहु कलेश विकार, तो हर तरह के कलेश और हर तरह के विकार जो है वो मिटा देते हैं और हमें क्या देते हैं, फलचार. फलचार क्या है, फलचार जो चार पुरुषार्थ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आगे क्लासेस में. तो भगवान की जो हनुमान जी की जब हम लोग साधना करते हैं, जब हम उनका नाम चांट करते हैं या जब हम उनका कोई भी पाठ पूजा करते हैं, तो वो वाइब्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होती है और वो रुद्र है, वो रुद्र रोने वाली जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जो विकार है, जो कलेश है. विकार क्या होते हैं, कलेश क्या होते हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे. तो कितनी तरह के विकार हैं, कितनी तरह के कलेश हैं, हम सब एक एक करके इसमें आगे आगे बुक में हम इसको एक एक चीज को पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे उस पाठ को करने से हमारी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, हम वो देखेंगे. Hanuman as Sankat Mochan, the liberator from all the crisis and suffering, is the same principle made personal and accessible. Every devotee who calls on Hanuman in the darkest moment is the calling of Rudra energy, the ancient force that has always been in the cosmos for exactly this purpose, to drive away the pain, to end the weeping. Rudra means the fierce one.
The aspect of Shiv that does not negotiate with what must be destroyed. When Hanuman burned Lanka, when he tore apart the demons with his bare hands, when he stood in Ravan's court with his tail blazing and laughed, this is Rudra. कि वो दहाड़ भी रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम, उनकी पूंछ को आग भी लगी हुई है, वो अलंका को भी जला रहे हैं, एट द सेम टाइम ही इज लाफिंग. एंड ऑल्सो बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट फिजिक, राइट. सो जब वो लंका में घूम रहे थे तो पीपल वर लुकिंग एट हिम, और उनको ये नहीं लग रहा था कि लोग मेरे को देखे क्यों, मेरे को क्यों दे, हमारी तरफ कोई देखे ना तो हम लोग लगता है अच्छा ये मुझे देख क्यों रहे, हम अपने आप को 10 बार ही देखते हैं. अरे मेरे को ऐसा क्यों देख रहा है, मेरे मेरे कुछ हुआ तो नहीं है, मेरे कपड़े तो नहीं, कुछ कुछ फटा तो नहीं है, कुछ मेरे मेरे फेस पे कुछ लग तो नहीं गया, लोग मेरे को ऐसे क्यों बार बार स्टेयर कर रहे हैं. बट ही वो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ही जस्ट वॉकिंग स्माइलिंग लाफिंग एंड ही हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है. सो बिकॉज कॉन्शियसनेस सुषुम्ना में है, ईड़ा पिंगला से कोई लेना देना नहीं है, कोई इमोशन से लेना देना नहीं है. इमोशंस भक्ति है बट कहाँ है, सुषुम्ना में है. ठीक है. तो वो भक्ति जो है वो हायर हार्ट है, वो क्राउन है, वो हायर हार्ट है. तो वो सोलर प्लेक्सस नहीं है. ठीक है. तो वो जो भक्ति है उनकी वो नेगेटिव इमोशन नहीं है, उनकी जो अंदर फीलिंग्स हैं. तो ही इज लाइक अबव ऑल दोज वाइसेस बिकॉज ईड़ा पिंगला में उनका कोई लेना देना नहीं है. नॉट ट्रूली, not anger in ordinary sense, but the fierce, focused, unconditional destruction of what stands against Dharma and against Ram. It is the same quality that Shiv expressed when he opened his third eye and burned Kamdev, when he took the Tandav dance to its most terrifying extreme, quality of a force that will not be stopped, cannot be bargained with, and answers to nothing except the divine will. द 11th रुद्र, सो ही इज द 11th रुद्र. तो शिव के 11 जो है वो रुद्र अवतार है, तो ही इज द 11th वन. Why 11 matters? The Shiva Puran specifies that Hanuman is the 11th Rudra. This is not an arbitrary number. In Vedic symbolism, 10 represents completeness. So 1 and 0. तो जब 10 आ जाता है तो हम उसको कंप्लीट बोलते हैं हमारे वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से. द 10 डायरेक्शंस ऑफ स्पेस, अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी 10 डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड 4 इंटरमीडिएट एंड अबव एंड बिलो. अब कैसे हो गई, सो हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, एंड देन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये हमारी 8 डायरेक्शन हो गई. 4 जो है कार्डिनल डायरेक्शंस है, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, एंड उसके बाद 2 डायरेक्शंस कौन सी है, अबव एंड बिलो. सो ऊपर और बिल्कुल नीचे. The 11th exceeds the 10. It is the one that goes beyond the complete, beyond the known, into the transcendent. The 11th Rudra is therefore the Rudra who transcends all the forms of Rudra that have been gone before, who contain all of them and goes beyond all of them. This is precisely what Hanuman does. तो हनुमान जी क्या करते हैं, 10 डायरेक्शन से भी ऊपर हैं वो. He is the 11th one. तो वो क्या करते हैं, जो 10 डायरेक्शंस के जो भी हमारे अंदर उसका इम्पैक्ट है उसको भी वो हर लेते हैं. He contains within him all the qualities of all the Rudras. So जो 10 रुद्र हैं, जो 10 रुद्रों की क्वालिटी है वो उनके अंदर सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो विद्यमान है. The fierce destructive power, the compassionate protection, the howling voice, the stillness of deep samadhi, and then he adds something none of the other Rudras express so completely: absolute selfless ईगोलेस डिवोशन टू अनदर. और उनमें एक और एड ऑन पार्ट क्या हो गया, सेल्फलेसनेस. ठीक है. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है. जब ये सब लोग, रावण मर जाता है, पुष्पक विमान में बैठ के वो
अयोध्या चले जाते हैं, वहां पर बैठ के सब लोग अपने, अभी भीषण लंका चले जाते हैं, जो सुग्रीव है वो अपने किष्किंधा नगरी चले जाते हैं। तो हनुमान जी को सारे राम को, भगवान को कहते हैं कि इनको भेजो, अब ये यहीं पर रहेंगे तो ये अपना काम कैसे करेंगे। तो वो माँ सीता को कहते हैं कि आप कहो। सीता माँ कहती मैं तो नहीं बोलूंगी। वो लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण तुम बोलो इसको कि हनुमान को जाए अब अपना काम करे। वो बोलते हैं तो मैं भी नहीं बैठ बोलूंगा। तो वो कहते हैं कि फिर मैं, अच्छा मैं ही बात करता हूँ। तो फिर वो हनुमान जी को बुलाते हैं कि हनुमान अब ऐसा है कि सारा काम हो गया, अब हम लोग सब अपने अपना सब हो गया, राम राज्य इधर स्थापित हो गया, उधर किष्किंधा नगरी में सुग्रीव जी ने राजा बन गए, उधर लंका जी में जाके विभीषण जी राजा बन गए, तुम्हें कौन सा पद चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे तो दो पद चाहिए। अब राम जी अपने मन के अंदर सोच रहे हैं ये तो लालच आ गया हनुमान जी को। तो वो कहते हैं अच्छा बताओ कौन से दो पद चाहिए। कहते एक आपका लेफ्ट पैर और एक आपका राइट पैर। तो ये दो पद मुझे चाहिए, मुझे हमेशा आपके चरणों में रहना है। दिस इज व्हाट ही सेड। सो इसीलिए उसके बाद से आप देखोगे जब राम दरबार की आप कोई भी पिक्चर देखते हो, कोई मूर्ति देखते हो, तो हमेशा जो है जो भगवान के चरणों में जो है वो स्थान उनको दिया गया, वो राम ने खुद दिया। जब उन्होंने उनको कोई पोस्ट ऑफर की गई तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ये दो पद चाहिए। So this is Hanuman. Okay. So the 11th Rudra is Shiva's own love made into a living being. It is the quality of Shiva that could never be fully expressed while Shiva remained Shiv. Because Shiva is always the supreme, always the object of worship, always the one who, यहीं से पढ़ना था ना। हाँ. As the 11th Rudra, as Hanuman, Shiva became the one who bows, and in that bowing something new entered the cosmos, the demonstration that the Supreme itself, when it loves fully, chooses to serve. So, Supreme Power जो है, he also served, chose to serve. He also chose to be very devotional. What this means for the devotee. The living implication understanding Hanuman as Shiva's Anshavatar transforms the nature of Hanuman's worship from a petition to a lower being into direct encounter with the highest. When you recite Hanuman Chalisa, you're not merely asking for a powerful deity for help. जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो it's not only हम हनुमान जी से help मांग रहे हैं. You are entering into the conversation with a being in whom Shiva is fully present, a being who has looked at the absolute from both the sides, who has been the supreme and chosen to become a servant, who carries in his body the memory of being God and the lived experience of what it means to love God completely. This is why the tradition says that Hanuman's grace is uniquely swift and complete. तो जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा आप कह सकते हैं कि it is Hanuman ji himself. It is when you chant Hanuman Chalisa, verse by verse, chapai by chapai, जब हम उसको पढ़ते हैं, we are actually creating the energy of Hanuman ji within us. सो जैसे जैसे हनुमान चालीसा का आप एक एक चौपाई, आप दोहों से शुरू करते हैं, दो दोहे पहले हैं, एक दोहा एंड में है, 40 चौपाई, 43 वर्सेस ये जो है, ये जो दो तीन दोहे और जो 40 चौपाइयां हैं, जैसे जैसे हम इनको पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो क्या है, हमारे अंदर हनुमान जी की एनर्जी जो है वो वन बाय वन वो चौपाई पढ़ते पढ़ते वो क्रिएट। तो दैट इज, यू कैन से द लिविंग हनुमान। हनुमान चालीसा इज द लिविंग हनुमान, उनकी साउंड में, उनके वर्ड्स में, उनकी उनकी वाइब्रेशंस में हनुमान, एवरी इन एवरी वर्स ही इज देयर। एंड आगे मैंने चैप्टर में डाला भी है, how Hanuman ji is connected with Ma Kamakhya, how Hanuman ji is connected with Shri Vidya, Lalita Sahasranam. So Lalita Sahasranam जब हम पढ़ते हैं तो बीच में बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं जो कि हनुमान जी इज हिम, इट इज हिमसेल्फ, वो हनुमान जी ही हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जो लोग श्री विद्या करते हैं मेरे साथ, हम पाठ करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम हम पाठ करेंगे, वेन एवर
हम लोग वहां पे हनुमान जी की वो आएगा, मंत्र आएगा, आई स्टॉप एंड आई टेल यू पीपल कि हाँ दिस इज हनुमान जी इन ललिता सहस्त्र नाम। और इतना ज्यादा उनकी उनकी पावर है कि ही इज प्रेजेंट इन एवरी एवरी डेटी, क्योंकि सांस है, सुषुम्ना है, तो सुषुम्ना से ही सारे जो देवता है हमारे उनकी उत्पत्ति होती है, मोस्ट ऑफ देम। कुछ ईड़ा में भी हैं, कुछ पिंगला में भी हैं, बट बहुत सारे जो हमारे देवता हैं वो सुषुम्ना नाड़ी में ही उनकी उत्पत्ति होती है। तो हनुमान जी इज ऑलवेज देयर, इसलिए ही इज कनेक्टेड विद ऑल ऑफ देम, बीइंग द वायु पुत्र ही इज कनेक्टेड विद ऑल ऑफ देम बिकॉज वी आर, हम लोग सांस तो हम सब लेते ही लेते हैं। और हम बात करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता कहाँ है? हमारे अंदर ही है। दे स्टे इनसाइड अस in the some in form of our chakras, some in form of our organs, some in form of our vertebra, हमारे वर्टिब्रल कॉलम उसमें भी हैं, कुछ हमारे हमारे हेड में है, कुछ हमारे थ्रोट में है। जब हम लोग शक्ति का करते हैं, जब हम लोग मेडिटेशंस करते हैं शक्ति की, जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, जो 51 वर्ड्स हैं, वो उनके भी एक एक देवता है, वो भी हमारे अंदर ही है। सो वो सब उनको कैसे वहां वो सब कनेक्टेड है हनुमान जी के साथ, बिकॉज सब सांसों के थ्रू ही आता है, सब उसी के थ्रू, जो प्राणों के थ्रू ही तो फ्लो होता है। चक्रास में एनर्जी कहाँ जा रही, कैसे जा रही है? थ्रू द फ्लो ऑफ प्राणा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एवरीवेयर, तो ही इज इनसाइड अस एवरीवेयर, वो हर जगह हमारे अंदर, हर देवता के साथ विद्यमान है, हर देवता के साथ उनका कनेक्शन है। इसीलिए हर हनुमान मंदिर के अंदर आपको माँ दुर्गा की पिक्चर दिखेगी, और हर दुर्गा के मंदिर के अंदर या देवी के मंदिर के अंदर या बाहर कहीं पर भी आप देखोगे वो हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी। दिस इज नॉट बाय फ्लूक, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, और ये ऐसे ही नहीं लगाया जाता, इट हैज अ डीपर मीनिंग। व्हाट दिस मीन्स, ओके हम कहाँ थे? एब्सोल्युटली, फ्रॉम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ओके यहाँ से, एंड दिस इज ऑल्सो वाई द ट्रेडिशन टीचेस दैट हनुमान वर्शिप इज द क्विकेस्ट पाथ to both Shiv and Ram simultaneously. When you love Hanuman, you are loving the being in whom Shiva's essence and Ram's grace meet. The living junction point of two greatest traditions in all Sanatan Dharma. In Hanuman's presence, the ancient question, is Shiva the supreme or is Vishnu the supreme, dissolves. तो ये कहानी खत्म हो जाती है जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं कि कौन बड़ा है, हनुमान शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं? वो दोनों एक ही हैं, वो सब जो शक्तियां हैं वो सब एक ही हैं, लेकिन हम लोग उनको अलग अलग, अब जैसे सपोज हम किसी की बात करते हैं, मैं डॉक्टर रितु की बात करती हूँ। सो से फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रितु, शी इज अ मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ द फाउंडेशन, she is a mother, she is a daughter, she is a wife, she is a sister, she is a friend. तो है तो वो रित्तो ही है ना, बट अलग अलग लोगों के साथ हम लोग अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, बट रित्तो इज वन, वो वही है। इसी तरह से जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है, सो पर्पस डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ द थिंग्स, हम लोग कई बार कहते हैं अच्छा ये है तो यहाँ से मांग लो, ये है तो यहाँ से मांग लो, बट अल्टीमेटली वो कहाँ जाती है? वो एक ही जो सुप्रीम पावर है, एक ही जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वहीं जाती है। टुवर्ड्स एंड मैंने बताया भी है कि कैसे हम ये जो सुप्रीम पावर है, जो राम है या जो शिव है, वो कैसे एक होते हैं और हम उनको कैसे फील कर सकते हैं कि हाँ वो कब एक हो जाते हैं हमारे अंदर। तो वो जो फीलिंग है राम और शिव के एक होने की, वो बहुत पावरफुल है। वो कब हुआ था? वो महाभारत के टाइम पे हुआ था, वो अर्जुन के रथ के ऊपर हुआ था, जब वहां पर विष्णु भगवान कृष्ण की रूप में वहां पर प्रेजेंट थे, और हनुमान जी जो शिव के रूप में ध्वजा में वो प्रेजेंट थे। तो क्या हुआ था? कोई भी उनको हरा नहीं पाया था। तो जब राम और शिव दोनों हमारी लाइफ में होते हैं, दैट इज द सुपर पावर।
तब हम सुपर पावरफुल बन जाते हैं। और इसको एक्सपीरियंस कैसे करना है? हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो एज जैसे जैसे आगे जाएंगे वो टॉपिक आएगा तो आई विल मेक यू एक्सपीरियंस दैट। Is Shiva the supreme or Vishnu the supreme dissolves? Because the answer is standing right before you, wearing the face of a golden monkey, with Ram's name on his lips and Shiva's fire in his eyes, laughing with the joy of one who has found that love and knowledge and power and surrender and strength and devotion are not different things at all, but one single blazing, indivisible, divine truth. Shankar Suban, the son of Shankar. In three syllables, the entire theology, this being carries Shiva within him, not as a memory, not as an inheritance, not as a distant resemblance, but as a living, blazing, breathing presence. Every time you say his name, you are invoking them both. So, any question up till here? Can we say Hanumanji as Trinity as well as you are explaining three aspects, divine light, love, and power? Uh, yes, in a way. सी जो ब्रह्मा एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी है, वो हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट में आती है, बट ही हैड ज्ञान ऑल्सो, ही हैड पावर ऑल्सो, ही हैड लव ऑल्सो. So we can say that he is the possessor of all these three energies, light, love, and power. How Hanuman Bhakti is different from Meera Bhakti? Bhakti is Bhakti, I think. बाकी मीरा जो थे, आई थिंक वो कलयुग की भक्त थी. कलयुग में उन्होंने किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया. शी हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ challenges. कैसे उनकी शादी हुई, एंड शी चोज टू लिव इन दैट टेम्पल. वहीं पर उन्होंने सारा कुछ त्याग किया. सो भक्ति इज भक्ति, बट हनुमान जी की भक्ति इज, यू कैन से, he was himself the form of Shiva. And Meera जो थी, definitely she was also an incarnate, but भक्ति का एस्पेक्ट चाहे वो हनुमान जी का है, चाहे वो मीरा का है, चाहे वो आपका है, वो वही भक्ति इज भक्ति. टाइम का फर्क है, सर्कमस्टांसेस का फर्क है, एनर्जी का फर्क है. हनुमान जी वॉज लाइक बल बुद्धि विद्या सब कुछ. तो मीरा को कहीं ना कहीं भक्ति में बहुत स्ट्रांग दिखाया गया है, बट उनकी भक्ति में ही सारी वो पावर दिखाई गई है. सो भक्ति आई थिंक किसी की भी हो, भक्ति वही रहती है, बट वो फेथ के साथ डिवोशन, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो मीरा हैड लॉट ऑफ फेथ, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ reverence toward Krishna, and she knew that yes, she will get it. समर्पण हनुमान जी में भी था. समर्पण के बिना भक्ति नहीं हो सकती. और हनुमान जी में भी समर्पण भी था, उनमें स्ट्रेंथ भी थी, उनमें सब कुछ था. Ma'am, if Lord Shiva is our Guru, then we accept Ram as our Guru mantra. If we have no Guru. दोबारा पूछो सुषमा, आप वैसे पूछो, क्या कहना चाह रहे हो आप? कि आप कहना चाह रहे हो कि हम कौन सा मंत्र करें अगर हमारे पास कोई गुरु नहीं है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ जी मैम, जैसे कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई गुरु नहीं है तो लॉर्ड शिवा को गुरु मान लो. हाँ, तो उसमें तो तो ओम उनका नमः शिव. हाँ, तो ओम नमः उनका शिव. फिर मंत्र राम मान सकते हैं गुरु मंत्र. हाँ, राम को भी गुरु मंत्र मान सकते हो. राम, शिव जी ने तारक मंत्र क्या दिया था? राम, राम नाम.
और शिव आप देखिए, आप शिव की साधना करें, आप राम की साधना करें, एक ही बात है। फर्क सिर्फ आपकी भावना का हो सकता है। मैंने जैसे पहले बताया, राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। हनुमान, ये जो ओम नमः शिवाय का जाप है ना, ओम नमः शिवाय मंत्र करने से हमारी इट इज क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग बोथ इन प्राणिक हीलिंग लैंग्वेज। राम का जो है वाइब्रेशन जो है वो सोहम की वाइब्रेशन है। तो डिफरेंस है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सबका दोनों का अच्छा आता है। तो आप गुरु मंत्र जो है वो राम नाम भी ले सकते हैं। गुरु मंत्र बेसिकली जो राम नाम है वो तारक मंत्र है, वो तारता है, वो मोक्षदायिनी है, मोक्ष देता है। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है आप वो करेंगे तो वो आपको राम तक ले जाएगा। और आप अभी के लिए इनिशियली ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू जी। द चाइल्डहुड एंड एजुकेशन ऑफ हनुमान। वायु's wrath and the birth of Hanuman's power। when वायु, अच्छा ये जो है ना, ये हेडिंग है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स रह गई हैं। ये आप थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, दैट इज द हेडिंग। when Vayu saw his son lying unconscious, struck down by Indra's weapon, a terrible grief and fury came upon him. He withdrew himself from all the three worlds. He stopped blowing. Immediately, all the life began to suffocate. So ये क्या हुआ था कि जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो सारे देवता जो थे वो परेशान हो गए, और जो इंद्र देवता थे उन्होंने अपने वज्र से अटैक किया था हनुमान जी के ऊपर, और वो उनकी चिन्ह के ऊपर लगा था, और वो अनकॉन्शियस होके जमीन पे गिर गए थे। जो जब वायु को, देवता को पता चला कि हनुमान जी को इंद्र देवता ने मारा है, तो वो, उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या कहा कि अब मैं जो है स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। तो वायु का स्ट्राइक पे जाने का मतलब क्या है? एवरीथिंग स्टिल, लोगों को सांस आना बंद हो जाएगा। जस्ट इमेजिन वायु देवता इफ ही स्टॉप्स वर्किंग, अब वो स्ट्राइक पे चले जाते, क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। ना तो पेड़ों को वो एनर्जी मिलेगी, ना जानवरों को एनर्जी मिलेगी, ना हमें सांस आएगा, प्राणों का संचार बंद हो जाएगा, चक्रास में एनर्जी नहीं रहेगी। तो सारी जो धरती थी वहां पे सफोकेशन होने लग गई। He stopped blowing. Immediately, all life began to suffocate. Gods, humans, animals, and plants began to die. No one could breathe. The creator Brahma rushed to the scene with all the major gods. Brahma revived Hanuman with his divine touch. Then, to make amends and to honor the extraordinary soul who had been struck, the gods began to bestow gifts upon the unconscious child one by one. तो सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए, सब वरदान देने लग गए। I got to know Ram is equal to Radha, Madhav. So even yes, yes, definitely. So राम को बहुत तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं। तो ये जो बीज मंत्र, दो बीज मंत्र से राम का जो बना है, शब्द बना है, रा और माँ। तो रा बिल्कुल ठीक है, राधा और माधव भी कह सकते हैं, तो उनकी कंबाइंड एनर्जी है। इसके साथ साथ राम जो है, आगे हम बात करेंगे, राम जो है, रा और म इज सिमिलर टू सो एंड हम, एंड ऑल्सो हम एंड सो। तो वो क्या है वो आगे जब आएगा, सो वील टॉक अबाउट इट। कमिंग बैक टू द बुक, the creator Brahma rushed to the scene with all major gods. Brahma revived Hanuman with his divine touch. No, then to make amends and to honor the extraordinary soul who has been struck, the gods began to bestow gifts upon the unconscious child one by one. Brahma granted him immunity from Brahmastra, the supreme weapon of Brahma. तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? क्या कहा कि मेरा जो ब्रह्मास्त्र है उसका तुम्हारे ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई ब्रह्मास्त्र चलाएगा, हनुमान जी को कुछ नहीं होगा। इंद्र डिक्लेयर्ड हिज वज्र वुड नेवर बी एबल टू हार्म हनुमान अगेन। तो इंद्र ने क्या कहा? जो मेरा वज्र है, जो मेरा जो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उनका हथियार है, वज्र, आ, वो इतना पावरफुल था वज्र, और वो किस लिए बनाया गया था? वो किसी असुर को मारने के लिए। और वो कैसे बना था कि कि बहुत जो प्योर एक सोल हो, जो बहुत, जिसने बहुत तपस्या की हो,
उनकी बोन से बनाया गया था। तो ऋषि दधीची थे, ऋषि दधीची ने अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को कुर्बान किया था और कहा था बिकॉज ही वॉज द वन जो कि ये कहते, तो शिव जी गए थे उनके पास और उनसे उनसे ये सेक्रीफाइस मांगा था एंड ही वेरी हैप्पीली सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। और उनकी बोन से, स्पेशली फ्रॉम उनकी रीढ़ की हड्डी की जो स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वो सुषुम्ना की स्ट्रेंथ थी, उसमें बहुत ज्यादा डिवाइन पावर थी, उससे वो वज्र बनाया गया था। और वो जो वज्र था वो इतना पावरफुल था कि वो वज्र इंद्र को दिया गया था बाद में। और वो इंद्र जो थे उन्होंने ये वरदान दिया था हनुमान जी को कि मेरे वज्र से तुम्हें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरे वज्र की चोट तुम्हें नहीं लगेगी। सूर्य gave him the power of illumination equal to a fraction of his own radiance and also the boon of becoming his student। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें 9 व्याकरणों की सारी जो है सारा ज्ञान दूंगा। 9 व्याकरणों का ज्ञान हमारे मोस्ट मतलब हाईएस्ट जो विद्या है, हाईएस्ट जो नॉलेज है, वो 9 व्याकरणों का ज्ञान है। तो कैसे हनुमान जी को 9 व्याकरणों का ज्ञान मिला था, ये हम इसकी भी बात करेंगे। वरुण द वाटर गॉड ग्रांटेड हिम सेफ्टी फ्रॉम वाटर। तो वरुण देवता ने क्या कहा कि तुम्हें जो पानी है वो कभी इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें कभी डुबा नहीं पाएगा, तुम्हें कभी हार्म नहीं कर पाएगा। यम डेथ, जो यम जो है वो जो डेथ मृत्यु के देवता हैं, गेव हिम द इम्यूनिटी फ्रॉम हिज ओन वेपन एंड फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, कि तुम्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं लगेगी, तुम्हें मेरा जो अस्त्र है वो कभी तुम्हें हार्म नहीं करेगा। Vishwakarma, the divine architect, declared that no weapon he had ever made could harm Hanuman। तो बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र थे जो विश्वकर्मा जी ने बनाए थे, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए हैं वो कभी भी तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। शिव ग्रांटेड हिम विद इमॉर्टेलिटी, चिरंजीवी स्टेटस जो था वो शिव जी ने वरदान दिया था कि तुम जब तक दुनिया है तब तक तुम हमेशा रहोगे, यू आर एन इमॉर्टल। और उनको प्रोटेक्शन का भी वरदान दिया था। कुबेर gave him the boon of happiness and so on। Every major deity gave him a boon। This is why Hanuman is described as the repository of all divine powers। इसलिए उनके पास ये सारे वरदान हैं और इसीलिए जब जिसके पास कुछ होगा तभी कुछ दे पाएगा ना। अब कोई किसी को आके कोई कहे मुझे जी आप इमॉर्टेलिटी का वरदान दे दो, वो कहेगा मेरे पास खुद के पास नहीं, मैं तेरे को क्या, मेरे पास खुद के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं तेरे को क्या वरदान दूं कि तेरी जो फाइनेंसेस है वो ठीक हो जाएंगे। तो बट ही हैड द बोन फ्रॉम ईच एंड एवरी डेटी, हर डेटी ने उनको वरदान, ही हैड एवरीथिंग, इसीलिए ही हैज द पावर टू गिव एवरीथिंग। सो ही बिकॉज ही possesses all those powers। This is why Hanuman is described as a repository of all divine powers। He did not acquire these powers through sadhana alone. They were gifted to him by the entire pantheon of gods at the very beginning of his life। So he was few years old जब ये when this happened, तो तभी उनको ये सारे वरदान दे दिए गए थे और उनको पास ये सारी पावर्स आ गई थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, द गिवर ऑफ 8 supernatural powers and 9 treasures। This boon was given by माता जानकी सीता herself to हनुमान। दिस इज फ्रॉम वर्स, और इसकी स्टोरी भी है वो हम जब ये आएंगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि का चैप्टर है प्रॉपर, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। देन इज कर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस। अब ये टॉपिक हम कर लेते हैं आज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम सबकी लाइफ में जो है ये इसका बहुत ज्यादा, इस टॉपिक का बहुत मेजर रोल है। ये पहले पढ़ते हैं, देन बीच बीच में वील टॉक अबाउट इट। द कर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस एंड इट्स विजडम, ये भी ऊपर ही आएगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा मार्क कर लो। एज हनुमान ग्रीव ही बिकेम एक्सीडिंगली पावरफुल एंड मिस्चीवियस। सो क्या था, उनके पास इतनी शक्तियां आ गई थी, उनको सारे देवी देवताओं ने, सारे डेटीज ने उनको बहुत सारे बून्स दे दिए थे, बहुत सारे वरदान दे दिए थे, तो उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी एंड ही वॉज वेरी नॉटी, ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। सो विद हिज बाउंडलेस एनर्जी एंड पावर्स ही बिगेन डिस्टर्बिंग द मेडिटेशंस ऑफ सेजेस। अब शरारती थे बहुत ज्यादा,
तो जो जो साधु लोग साधना करते होते थे, कभी उनका कुछ उठा के ले जाते थे, कभी उनका गदा उठा के योगदंड उठा के ले जाते थे, कभी उनकी हवन की लकड़ियां उठा के ले जाते थे, कभी उनको फल मारते थे पेड़ के ऊपर चढ़ के। तो ही वॉज वेरी मिस्चीवियस. He would dismantle their carefully arranged ritual objects, scatter their fire offerings, and pull their matted hair in playful mockery. तो क्या कहते हैं, उनके जो जटाएं थी, कभी उनको खींच देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे. The sages, though fond of the divine child, had no choice but to gently curse him. तो क्या किया उन्होंने, उनको बहुत प्यारे थे, वो बहुत प्यार करते थे उनसे, बट वो शरारतें बहुत करते थे. तो बहुत जेंटली उन्होंने उनको एक श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, और तक वो शक्तियां तुम्हारी दोबारा जागृत नहीं होंगी जब तक कोई गुरु तुम्हें उनकी शक्तियों को जागृत नहीं कराएगा. लेट मी रीड इट फर्स्ट, देन वील कम टू द एक्सप्लेनेशन. They cursed him, and even this curse was a compassionate gift. They declared that Hanuman would forget his own unlimited powers until someone reminded him of them. Only when reminded would he remember and be able to use them. This curse seems like a limitation, but it was in fact a universe way of teaching a profound spiritual lesson. True power lies not in constant display but in humility. तो क्या था, वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके शरारतें कर रहे थे. तो इससे हमें, हमारा लेसन क्या है कि अगर हमारे पास कोई पावर है तो हमें उसको मिसयूज नहीं करना है, बट हमें उसको बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उसको यूज करना है. Hanuman became the greatest servant precisely because he forgot he was the greatest warrior. तो उनको भूल गया कि उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं. And it was only in the service of Ram, when needed by another, that his true powers were awakened. This is the teaching of Nishkam Karam, desireless action, encoded in the mythic form. Hanuman's powers returned only in service, never in self एग्रेडाइजमेंट. तो क्या है कि आपको जब भी कोई भी हमारे पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, ठीक है, एक्चुअली में हम सबके पास भी हनुमान की तरह सारी की सारी पावर्स हैं. हमारे अंदर भी वो डिविनिटी है, बट हम उसको भूल चुके हैं. हमारी ये जो यूथ है, इसके पास बहुत सारी पावर है. हमारे पास, मैं किसी के साथ एक वो सुन रही थी किसी का, तो वो भी यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास हनुमान नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हनुमान है, हमारी यूथ के पास बहुत पावर है, बट उस पावर को जगाने वाले जामवन की कमी है. तो हम लोग अगर हनुमान जी को जामवंत बन के, अगर आपको लग रहा है दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल बट वो भूला हुआ है, उसको पता नहीं है, तो अगर हम उसकी लाइफ में जामवंत का रोल प्ले करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि उसकी शक्तियां, he'll be able to use his powers in the right direction, not in the showing off, not in तो this is what we need to do. हम लोग, सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोगों को यही करना है कि हमारे आसपास जो लोग, बिकॉज वी ऑल आर समवेयर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, तो जो लोग शक्तियां भूल चुके हैं, जो लोग अपने गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनको उनकी पावर्स को याद करा के हम लोगों ने उनका अंदर का हनुमान जागृत करना है. और अगर आप अपने ही जामवंत खुद बन सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. तो हमारे अंदर जो वो पावर्स हैं, हमारे अंदर भी सारी की सारी पावर है. अष्ट सिद्धियां नव निधियां कहाँ है, हमारे अंदर ही हैं, पर डोमेंट स्टेट में है. उनको जागृत कौन कर सकता है, एक गुरु जागृत कर सकता है. और अगर उस गुरु को हम अपने अंदर जागृत कर लेंगे तो वो गुरु की एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की पावर्स को जागृत कर देगी. और यहीं पर हम सब लोग स्टक हैं. तो यहाँ पर ही आज मैं स्टॉप करूंगी, बाकी हम कल पढ़ेंगे. बट आपको अभी के लिए क्या इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्या इनर रिफ्लेक्शन आज आपको करना है कि मेरी अंदर की पावर्स क्या है, और मैं कैसे अपने गुरु को कैसे जागृत कर सकते हैं. हम मेडिटेट करके जागृत कर सकते हैं. आप
अगर आप प्राणिक हीलर हैं, आप शरणागति करके अपने अंदर के गुरु को जागृत कर सकते हैं। अगर आप प्राणिक हीलर नहीं हैं, आप ओम गुरुवे नमः का जाप करके अपने अंदर के गुरु को जागृत कर सकते हैं। और जब आपके अंदर का गुरु जागृत हो जाएगा तो क्या होगा, आपके वो अंदर के गुरु आपके अंदर के हनुमान को जागृत कर देंगे। फिर ऑटोमेटिकली अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड दैट व्हेन दिस हैपेंस, और ये होता है हमारी लाइफ में, ऑटोमेटिकली होता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी कोई साधना करते हैं, हम कंसिस्टेंटली कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। हम लोग को लगता है हाँ मैं पहले ऐसी नहीं थी, आई हैव ट्रांसफॉर्म, मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस क्या है, वो हमारे अंदर के गुरु, जो हमारे अंदर के जामवंत हैं, वो हमारे अंदर के हनुमान को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, या तो कोई बाहर का गुरु आके करेगा या अंदर का गुरु करेगा। तो अगर बाहर के गुरु अभी नहीं आ रहे हैं तो अंदर के गुरु को जागृत करिए, शरणागति करिए, रेगुलर बेसिस पे अपनी मेडिटेशंस करिए। अगर आप स्वयोगी हैं तो आप अपने जो भी आपको साधनाएं दी गई हैं, अपनी मॉर्निंग साधना कीजिए, आप अलाइनमेंट्स प्रॉपर कीजिए। और इस तरह से हमारे अंदर जब वो सब कुछ जागृत हो जाएगा तो हमारी पावर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। एनी क्वेश्चन? Okay, then let's close the session. Close your eyes for few seconds. Relax करो थोड़ा सा. Deep inhalations. Inhale deeply. Hold your breath for a while. Exhale. Hold for a while. Inhale again. Hold. Exhale. Hold. Just relax. I salute the divinity within each one of you. Thank you for joining. Atma Namaste. Hari Om. Ram Ram. Thank you. आत्मा कल नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते मैम। आपको कॉल कर लूँ? कौन पूछ रहा है? कुलदीप? हाँ कुलदीप कर लो। ओके मैम।